Hello learners, in today's statistics chapter mean, we are going to start the questions on when the mid values are given and you have to calculate mean. So when mid values are given, that is a continuous series instead of class intervals. Now here you can see the class intervals are here. Okay? The class intervals are missing and only mid values are given. Okay, and frequency is given here 4, 8, 10, 6 and 2. Okay, so what we will do instead of class interval, then calculate mean is we calculate the mean as used in discrete series. Okay, so how we are going to do the discrete series? Let's find out. Just okay. So no class interval is needed here. First of all, in you can say in discrete series, we need to calculate with shortcut method first. Okay. Suppose I'm going to start here with shortcut method. आप direct method से भी कर सकते हैं. Answer will be the same. So here shortcut method, what I know here, mid value is given. So yes, assumed mean summation FD upon summation F. Okay. Now I should know first of all summation F, that is frequency. So 4 plus 8 plus 10 plus 6 plus 2, you will get here 30. Okay. Now I need to calculate D. That is D is M minus A. ओके तो m माइनस ए कितना हो गया आपका दैट इज मिड वैल्यू हमने a को अज्यूम करा हियर एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम मिड ओके तो हियर विल कम 0 देन 10 देन 20 देन 30 देन 40 सिंपलेस्ट वे ओके माइनस प्लस कहीं पे नहीं आप कोई सी भी बुक उठा के देख लेंगे उसमें नेगेटिव प्लस नेगेटिव और पॉजिटिव वाले मार्क्स मतलब नंबर्स आ रहे होंगे ओके बट द सेफेस्ट साइड इज टू टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम द मिड वैल्यू एज अज्यूम्ड मीन it would be very easy for you. Now FD, that is F into D, the 4 zeros are 0, then 80, then 200, then 6 into 30, 180, and 40 into 2, you will get 480. So in the discrete series, continuous series में हम ये इस तरह करेंगे जब नहीं मिलता है हमें, right? So how much you are going to get here? That is 0 plus 80 plus 200 plus 180 plus 80. So you will get here 540. Now I'm going to put the values in this formula. So assume mean is 5. Then summation FD is 540. I hope you understand it. Then frequency is given 30. So 5 plus कितना आ जाएगा 18 आएगा right 540 divided by 30 and you will get here 23 is your answer. ओके अगर हम इसको शॉर्टकट मेथड हो गया अब स्टेप डिविएशन से भी करके देख लेते हैं कि आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं है स्टेप डिविएशन मेथड नाउ आई नो हियर अज्यूम मीन इज 5 नाउ कॉमन फैक्टर क्या होगा कॉमन फैक्टर देखो इन सब का डिफरेंस क्या आ रहा है 10 10 आ रहा है ना सो दैट कैन बी 10 एंड आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला हियर ए प्लस summation f d dash upon summation f into c. Now d dash I need to calculate. D dash m minus a divided by c. So m minus a is here, this, okay? And divide by c, c is 10. So 0, 1, 2, 3, 4. So simple. Then f d dash, that means f is going to be multiplied by d dash, okay? So 4 zeros are 0, 8 ones are 8. Then 10 twos are 20, 6 threes are 18, and 2 fours are 8. So here it comes 0, 8, 20, 18, 8. And the total of FD dash would be 54. Okay. तो सिर्फ आपका ये आसानी क्यों हुई जस्ट बिकॉज यू हैव टेकन द स्मॉलेस्ट
वैल्यू ऑफ यू कैन से अज्यूम मीन एज अ स्मॉलेस्ट वैल्यू फ्रॉम मिड वैल्यू। अभी आप इसको चेंज करके देख लिए वैल्यू को, you will come to know that how you're going to calculate then. Okay, it would be very tough. So 5 plus fd dash is 54 upon this summation f is 30 into 10. So how much you're going to get after this? So you will get here again 18. So it will be 23 answer in both the case. Got it here? सो मिड वैल्यूज जब गिवन होगी तो आपको बस इसका क्या करना है, अज्यूम्ड मीन मान लिए, डिफरेंसेस जो होंगे कॉमन फैक्टर वो आ जाएगा, एंड सेम वही चीज़ आपको फॉलो करनी है. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट. आई हैव सॉल्व्ड इट विद द शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डिविएशन मेथड. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट बाय योरसेल्फ. नाउ अगेन इट्स अ क्वेश्चन, मिड वैल्यूज आर गिवन. अब हम इसको देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं डायरेक्ट मेथड से करके देख लेती हूँ. दो मेथड तो हमने करके देख ही लिए, तो ये तो और सिंपल है. नाउ इन डायरेक्ट मेथड we know the formula what 10 20 30 40 50. Okay, so summation fm upon summation f, so simple. यानी कि f and m, तो here you will get 80, then 240, then 450, then 360. इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, एंड 300. सबमेशन f कितना आ रहा है आपका, इन सब की फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 50 हियर. एंड सबमेशन एफ एम कितना आएगा आपका, you will get 1430. Okay, now put the values in the formula. 1430 divided by 50. So you will get how much? 28.6. Now suppose if I want to check my answer, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ ताकि आप कोई भी मेथड अप्लाई करेंगे एग्जाम में, अगर नथिंग इज मेंशन, बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड इज टू टेक द डू द कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड. ओके, डायरेक्ट मेथड सभी चीज़ों का आसान होता है, राइट. तो अब मैं कर लेती हूँ शॉर्टकट मेथड से. ना शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन एफ डी अपॉन समेशन एफ. अज्यूम मीन एम में से निकालेंगे, सबसे छोटा वैल्यू आया 10, सो दिस इज योर अज्यूम मीन. कॉमन फैक्टर क्या है, डिफरेंस इज अगेन 10, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सो नो नीड. द स्टेप डिविएशन आप इसी का निकाल के देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट. नाउ डी हाउ आई गोइंग टू फाइंड आउट एम माइनस ए. So 10 minus a, 0, then 10, then 20, then 30, and then 40. Then FD, summation FD कैसे आप कैलकुलेट करेंगे ये आप मुझे बताइए. Pause the video and start doing it. So 8 zeros are 0, then 120, then 15 into 20, you will get 300, then 270, and then 240. Okay, I hope आंसर सबके आ रही होंगे इसमें. And total would be 930. Now I'm going to put the values in the formula. Assume mean is 10, right, यहाँ से आ गया. समेशन एफ डी आपका आ गया 930 प्लस हो गया 930. एक मिनट, जस्ट वेट, ये यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा. ओके, एंड देन लास्ट आपका क्या आ जाएगा, दैट इज समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का 50. So you will get here 10 plus 18.6. Again, the answer is 28.6. So I have proved this, that is either of any of the methods, direct, shortcut, step deviation. Okay, the answers are going to be same. अब ये lines अपने आप draw कर लेना, ठीक है. थोड़ा सा मैंने lines draw नहीं करी है, नीटली उसको अपने रजिस्टर में आप करिएगा, ठीक है. So just draw the lines neatly. Okay, I hope it's clear. तो मैंने इसमें डायरेक्ट मेथड भी किया है एंड शॉर्टकट मेथड भी किया है. अब आप इसको स्टेप डिविएशन मेथड से खुद भी प्रैक्टिस कर लिएगा,
तीनों मेथड इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ। टेक द स्क्रीनशॉट, इसमें आपको खाली डी डैश निकालना है एंड देन एफ डी डैश। ओके, नेक्स्ट इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। अब इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स में क्या होता है, व्हेन द डेटा इज गिवन इन इंक्लूसिव सीरीज इट्स नॉट नेसेसरी टू एडजस्ट द क्लासेस एज मिड वैल्यूज रिमेन्स द सेम, यानी कि जो m निकालते हैं वो हमारा सेम होता है, राइट? तो जस्ट वेट हियर, फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो गिवन। ओके, देखो मैंने आई हैव रिटन द फ्रीक्वेंसी हियर, 1, 3, 8, 10, ओके, देन 15 एंड 3। तो इसको हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसको जैसे 50 और 59 है तो यहाँ से 59 से स्टार्ट होना चाहिए था ना, बट व्हाट हैपेंस वी कैन सी हियर डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है सब में ना, 1। तो अगर हम 1 को 1 का हाफ करेंगे, ठीक है, तो कितना होगा 0.5। तो करना क्या चाहिए था, 0.5 यहाँ पे हम जो है क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और यहाँ पे 0.5 ऐड कर देंगे, चाहे हम इतना लंबा प्रोसेस करें, बट इट इज नॉट नीडेड। ठीक है, अगर इस तरह की इंक्लूसिव क्लास सीरीज आती है एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज, ये हमें जरूरत नहीं है। ओके, सो व्हाट वी विल डू हियर कि हम जो 1 का इसका डिफरेंस है, वो 1 के डिफरेंस को क्या करेंगे, एज इट इज ऐसे ही इसको बस रहने देंगे एंड लेट्स स्टार्ट हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, तो पहले हम सबमेशन एफ कर लेते हैं, कितना आएगा इन सबको टोटल करके, दैट वुड बी 40। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्या करना है, मिड पॉइंट्स निकालना है। मिड पॉइंट्स आपका सेम ही होगा, तो यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट आप इसका निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, अगेन सेम थिंग। ठीक है, सो यू विल गेट हाउ मच हियर, 54.5। ओके, देन 44.5, देन 34.5, then 24.5, then 14.5 and last is 4.5. ठीक है, 0 plus 9, 9, 9 divided by 2, 4.5. Now you got the midpoints. Now अब हमें क्या करना है, now we are going to start with the step deviation method. चलिए step deviation method का मुझे फॉर्मूला बताइए। step deviation method, सबसे पहले क्या होगा, assumed mean। assumed mean कितना है आपका, सबसे लोवेस्ट ले लो, 4.5, 4.5। अब डिफरेंस कितना आ रहा है, सबका 10 का मान के चलिए, ओके 1 का डिफरेंस था ना, तो यूँ तो 9 का दिख रहा है, लेकिन अगर हम 1 एडजस्ट करते हैं वो 10 का ही डिफरेंस आता है, तो हम उसका कॉमन फैक्टर 10 ले रहे हैं। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला, ये ए प्लस समेशन एफ डी डैश अपॉन समेशन एफ इंटू सी। अच्छा, मेरा ये जो ए मैं लिख देती हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, ये गलत है। ठीक है, ये ऐसे आएगा। नाउ ए कितना है, 4.5 प्लस इनटू ये तो 10, मैंने इतने फॉर्मूला इतना वैल्यूज लिख दिया, अब मुझे खाली किसकी वैल्यू चाहिए, डी डैश की। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर डी, डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, एम माइनस ए, राइट? एम माइनस ए कितना होगा, 54 - 5, 54.5 - 4.5। आप जितने भी नंबर्स m के वैल्यू इसमें लिखे हुए हैं, सबको हमें माइनस कर देना है, सबकी इन सबकी वैल्यूज में से 4.5। ठीक है, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं करूंगी, यू विल गेट योर 50, 40, 30, 20, 10 एंड 0, इतना आ गया। नेक्स्ट इज व्हाट, अब हमें निकालना है डी डैश, राइट? तो m माइनस ए डिवाइडेड बाई सी। ओके, this is the formula. So m minus a itna or 10 is the common factor. So you will get here 5, 4, 3, 2, 1, 0. Right? Now the next is fd dash. fd dash. F and d dash. So 1 5 is a 5, 4 3 is a 12,
right? Then 24, then 20, then 15, and then 0. So how much you will get here in this column? Summation FD dash is 76. Now I've already given you the put the values of this. Okay, पहले से मैंने कर रखा है 76. So you will get here 4.5 प्लस इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो 76 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा and you will get here 19. तो 19 plus 4.5 you will get 23.5 is your answer. You can take the screenshot. ठीक है. सो इसमें सिंपल आपको पता क्या होना है, आपने देखा 1 का डिफरेंस है, आप कुछ नहीं करेंगे. ओके, जो मिड पॉइंट की वैल्यू आएगी वो सब में सेम आएगी. ठीक है, इसलिए तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में आपको नहीं कन्वर्ट करना है. मैंने आपको बता दिया कि हाफ आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, बट इट इज नॉट नेसेसरी. जरूरत क्या है इतना जो है अपने कैलकुलेशन यूं ही क्या कम है जो और आप कैलकुलेशन में और इन्वॉल्व हो. बेस्ट पार्ट इतना करके आराम से आपका आंसर आ जाएगा. ओके. Now the next again one more question from this here. अब देखो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, 20 29 है. अब यहाँ पे 29 है, 30 39 है. तो हम कुछ नहीं करेंगे. वी विल जस्ट राइट हियर समेशन एफ. इसका टोटल करो, मिड पॉइंट निकालो, देन डी निकालो. ओके, एंड एफ डी निकाल लो. या अगर डी डैश निकालना चाहें तो आप डी डैश भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो हम क्या करते हैं, हम और सिंपल कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट मेथड से कर लेते हैं. आप इस तरह भी कर सकते हैं. आई एम जस्ट डूइंग डायरेक्ट मेथड, द सिंपलेस्ट मेथड. अब आप देखिएगा आपका शॉर्टकट मेथड से ये आंसर आता है कि नहीं आता है, राइट. सो 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49. सो एम वुड बी, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड करा 2 से, राइट. तो मिड पॉइंट कितना आया इसका, 24.5, 34.5, 44.5. इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड करा 2 से. ओके, यही होता है ना, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2. यही मिड पॉइंट इसी तरह निकालते हैं. देन 54.5 एंड देन 64.5. समेशन एफ कितना आ रहा है, 30. नाउ डायरेक्ट मेथड, what we will do here, first write the formula, summation f m upon summation f. Now summation f is 30 and f m would be f into m, right. So f into m would be first का 245, 10 into 2, 24.5. Then अब आप खुद से कैलकुलेट करते जाइएगा, प्लीज चेक द कैलकुलेशन बाय योरसेल्फ. 267, 218 and 129. So summation fm is equals to 1135. Now 1135 को डिवाइड करेंगे आप 30 से, you will get 37.83. तो ये क्या है, एवरेज एज ऑफ वर्कर्स. सो एवरेज एज ऑफ वर्कर्स इज इक्वल्स टू 37.83 years, and this is your answer. Okay, now it's your homework. You have to do the same sum by shortcut method. डी कैलकुलेट करना, फिर एफ डी कर देना. ठीक है, सिंपल सा दे रही हूँ होमवर्क. ओके, so I hope this is done, and in the next video we are going to do the open end series questions, okay, of mean chapter statistics class 11th. Don't miss the next video, it would be great help for you. And other thing is this, that is the most important thing, micro macro के सब notes, each and every chapter in detail. Questions are also solved, summary is also given, and the playlist is already there. So do like, share, and subscribe Economics at Ease. Thank you for watching.